Hello guys, good morning students. Yesterday we have seen few points from the we have seen that basic internet terms. In that some points I have discussed with you through a video and in a lecture as well. Now I am going to discuss with you further points of basic internet terms. हमने कुछ देखे थे, कुछ देखना बाकी है. तो हमने क्या देखा था कल? वर्ल्ड वाइड वेब देखा था, वेब पेज देखा था, हाइपर टेक्स्ट वेब ब्राउजर एंड वेबसाइट, this and web server. These things we have seen when we started learning basic internet terms. Okay, this is the third point from the chapter, that is chapter number 6, introduction to internet. Okay, from this we have this one is the third point that which we have learned yesterday. So some of the points we have seen. Now let's move towards another point from this section, that is basic internet terms, that is download and upload. डाउनलोड, अभी नेट जब आप ऑन करते हो तो आपको कुछ बुक्स होते हैं या कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस होते हैं जो कि आप क्या करते हो, डाउनलोड करते हो. या फिर आपको कुछ सेंड करना है, जैसे आप लोगों को नोट्स सेंड करने होते हैं एक दूसरे को, या हम लोग आपको नोट्स सेंड करते हैं ऑन अ व्हाट्सएप. अभी राइटिंग मटेरियल तो हमारे पास बोर्ड वगैरह नहीं है, वी कांट बी फिजिकली प्रेजेंट, तो हम क्या करते हैं, आप लोगों को वर्चुअली हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं बाय अपलोडिंग नोट्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, तो ये कैसे किया जाता है, दैट वी वांट टू सी. सो आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकली. Like in basic internet term, next point that we are seeing is download and upload. So how to download a file and how to upload a file, I'm going to show you over here. So to download a file, simply what you have to do, now this one is my WhatsApp. Okay, this one is my WhatsApp. Now what I want to do, I want to download a file, I want to download one of the file. Okay, so here is one of the file on my WhatsApp group. आपको जब भी यहाँ पे दिखेगा the arrow which is indicating downside, which is shown which is indicating downside direction. Okay, this direction, this type of arrow indicates that you can download a file, file. So if you want to download a file, what you have to do, simply you have to click over here and you can download a file. You can see now this file is being downloaded over here. Okay, in the same way, if you want to upload, a file, अपलोड करना है कोई फाइल या कोई कॉन्टैक्ट, तो कैसे करोगे, तो ये है ना, दिस इज कॉल्ड एज एन अटैचमेंट, तो डाउनलोड कैसे करना है, ये साइन है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करो और डाउनलोड करो. और अपलोड कैसे करोगे, जस्ट क्लिक ओवर हियर. आफ्टर क्लिकिंग ओवर हियर आई विल गो इन योर क्लास ग्रुप, दैट इज क्लास 6th. So now what I will do, I am going to upload here some notes. अभी फिफ्थ चैप्टर के जो नोट्स हमने जो फिफ्थ चैप्टर सीखा था उसके नोट्स बहुत लोगों के पास नहीं है. मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था तो मुझे क्वेश्चन किया गया था दैट मैम वी आर नॉट हैविंग नोट्स ऑफ फिफ्थ चैप्टर. ओके, तो मैं उसके नोट्स अपलोड करती हूँ. तो मैंने आपको बताया डाउनलोड कैसे करना है. इफ on your WhatsApp, if you are getting to see this kind of arrow on your image or on a video or on a presentation or any of the file, what you have to do, just you have to click on this arrow and your file will be downloaded. Okay, and if you want to upload, मतलब किसी को भेजना है आपको कुछ, तो क्या करना है, you have to attach the file, you have to upload the file by clicking on this attachment. मोबाइल के ऊपर भी होता है, क्या करना है, you have to click on this here you can see there is a figure of a file pin. This we call it as a file pin. Okay, so this is called as an attachment over here. You have to click over here. After clicking over here, it asks you whether you want to upload photo or a video, or you want to click a photo using a camera, or you want to attach a document or a contact, or you want a live session. ओके, सो आई वॉन्ट टू अटैच डॉक्यूमेंट. मुझे क्या करना है, नोट सेंड करना है आपको, तो क्या अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट. सो आई एम क्लिकिंग ऑन डॉक्यूमेंट. आफ्टर क्लिकिंग ऑन डॉक्यूमेंट, इन विच एवर फोल्डर आई एम हैविंग योर नोट्स, जो भी फोल्डर में मेरे पास आपके नोट्स होंगे, आई एम गोइंग ओवर देयर. आई एम क्लिकिंग ऑन द नोट्स एंड आई एम सेइंग आई हैव सिलेक्टेड अ नोट, the name you can see in file name, and click on open. After clicking on open, here it's asking me that whether I have to send, so you have to click on send, and you can see that my that the chapter notes are being uploaded. Okay, that the chapter notes are being uploaded. Okay, so
in this way you can upload a file or a video or a audio or whatever you want, image and all those, you can upload it over here. Okay, so in this way we can download a file or a video or a audio, and in this way we can upload a file, a document or a contact or any other thing. Okay, now next one over here is, after download and upload, next thing over here is, that is ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्या होता है, अगर आपका सपोज नेट चालू है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज माय नेट कनेक्शन, मैंने अभी इसे वाईफाई से कनेक्ट किया है. अब ये यहाँ पे क्या बता रहा है, इट इज कनेक्टेड. कनेक्टेड मतलब आप जो भी यहाँ पे फाइल का नाम डाल रहे हो, लाइक मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे क्या किया, आई एम टेकिंग अ न्यू टैब और मैंने यहाँ पे जीमेल डाला. ओके, जीमेल डाला, मैंने सर्च किया तो क्या हुआ, वो लोड हो गया. क्या हो गया, मतलब व्हाट दिस मीन, दैट आई एम ऑनलाइन. क्या मीनिंग है इसका, आई एम ऑनलाइन. इफ आई एम नॉट ऑनलाइन, अगर मैं ऑनलाइन नहीं रहूंगी, मतलब यहाँ से मैं क्या करूंगी, डिस्कनेक्ट करूंगी. जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन है उससे मैं क्या करूंगी, डिस्कनेक्ट करूंगी. डिस्कनेक्ट करना मतलब आप मोबाइल पे क्या करते हो, इंटरनेट कनेक्शन को क्या करते हो, बंद करते हो. ओके, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया. अगर अभी मैं कोई भी लिंक के ऊपर जाके क्लिक कर रही हूँ, व्हाट आई एम क्लिकिंग ऑन सम ऑफ द लिंक, मैंने क्लिक किया लिंक के ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ पे वो लोड नहीं होगा. आप देख सकते हो कि वो क्या हो रहा है, वो जो भी फाइल है क्या हो रही है, लोड नहीं हो रही है. मतलब आप क्या हो, ऑफलाइन मोड में हो. अगर आप यहाँ पे आके, यहाँ पे मैं वेब व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, तो क्या बोल रहा है ये, नो इंटरनेट. नो इंटरनेट, दिस मीन्स दैट यू आर ऑफलाइन. यू आर ऑफलाइन मतलब आपका इंटरनेट बंद है. और ऑनलाइन मतलब क्या, कि आपका इंटरनेट चालू है, इंटरनेट सर्फिंग क्या है, चालू है. ओके, सो here online means you are, everything is working properly over internet, whatever things you are searching you are getting the information. And offline means your internet connectivity is not working, or you are not turn on the internet data. Okay, now next one is URL. next one क्या है, here next point over here is URL. तो URL क्या होता है ना, आपको बताती हूँ मैं, just a second. What is meant by URL? So the full form of URL, the full form of URL is, the full form of URL is Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator. तो URL कैसे होता है ना, जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे आती हूँ. ओके, तो URL कैसे होता है, आप यहाँ पे क्या करते हो, जब आप कोई भी साइट ओपन करते हो ना, या कोई भी वेबसाइट का नाम देते हो, जैसे मैंने अभी webwhatsapp.com दिया था, www.webwhatsapp.com, तो वो कैसे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे https://www.webwhatsapp.com. इस फॉर्म में आपका साइट ये होती है, आपका साइट ये होता है आपकी साइट का पूरा नाम. इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. दिस इज द एड्रेस, दिस इज द वेबसाइट, दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड एज अ URL. दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड एज अ URL. ओके, तो URL मतलब क्या, कि इंटरनेट क्या है ना, काफी लाखों हजारों करोड़ों पेजेस से बना हुआ है. काफी सारे वेबसाइट्स है, हर एक वेबसाइट के क्या है, अलग अलग पेजेस है. ओके, तो वो पेजेस में हर एक वेबसाइट को लोकेट करने के लिए ना एक एड्रेस दिया जाता है. जैसे व्हाट्सएप के लिए क्या एड्रेस है, वेब व्हाट्सएप, ये एड्रेस है व्हाट्सएप का. ओके, तो व्हाट्सएप आप कैसे लोकेट कर सकते हो, बाय यूजिंग दिस वेब व्हाट्सएप. बाय यूजिंग दिस वेब व्हाट्सएप, तो ये कंप्लीट चीज जो होती है, http://www.whatsapp.com.
Okay, what this mean? This mean that this complete thing is called as a URL. URL, Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator. मतलब जैसे अगर आपने यूनिफॉर्म पहना है, ओके, सेंट मोनिका का यूनिफॉर्म पहना है, तो कोई भी आपको देख के क्या बोलेगा, दैट दिस वन इज द स्टूडेंट ऑफ सेंट मोनिका। वैसे ये अगर आप कोई देखेगा, ये साइड कोई भी देखेगा, तो क्या बोलेगा, इसके अंदर कौन सा वर्ड यूज हुआ है, व्हाट्सएप, मीन्स दिस इज द वेबसाइट और दिस वन इज द यूआरएल ऑफ व्हाट्सएप। ओके, तो व्हाट्स URL मतलब क्या, द URL इज कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ पेजेस एंड हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दोज पेजेस और हाउ वी कैन इंडिकेट दोज पेजेस बाय with its domain name, with its domain name। तो डोमेन नेम क्या होता है यहाँ पे बताती हूँ। डोमेन नेम मतलब क्या ना, कि जो www डॉट और .com के बीच में जो स्टेटमेंट आता है, www डॉट और .com के बीच में जो स्टेटमेंट आता है, जो एक्चुअल नाम होता है वेबसाइट का, उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम। क्या कहते हैं, डोमेन नेम। अभी www डॉट और .com हर एक वेबसाइट में कॉमन है, पर डोमेन नेम क्या है, पहचानने के लिए कि अपना है। जैसे अगर कोई वेबसाइट है, जैसे www.stmonica.international.com और stmonica.international.com, तो सेंट मोनिका इंटरनेशनल से क्या आप पहचान रहे हो कि इट इज द वेबसाइट ऑफ सेंट मोनिका स्कूल विच इज इन वैजापुर, which is in Aurangabad district in Vaizapur तालुका। ओके, एंड इज सिचुएटेड नियर स्टेशन रोड। आपको ये ध्यान में आता है। ओके, तो वैसे ही वेब व्हाट्सएप से आपको क्या ध्यान में आता है, ये व्हाट्सएप जो ऐप यूज करते हैं उसकी वेबसाइट है। और क्या है इसका, कि हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ओवर इंटरनेट ऑन अ कंप्यूटर और ऑन अ लैपटॉप वी कैन एक्सेस दिस व्हाट्सएप। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया यूआरएल, और ये कंप्लीट बन गया जाता है यूआरएल, और जो इसके अंदर एक स्टेटमेंट होती है www डॉट और .com के बीच में, इसे कहा जाता है डोमेन नेम। इसे क्या कहा जाता है, डोमेन नेम। ओके ना, सो डोमेन नेम ना बहुत सारे टाइप के हम लगाते हैं। लाइक अगर जैसे yahoo.com, अगर अभी आपने मोस्टली क्या सुना है, डोमेन नेम में .com ही सुना हुआ है, पर .com के अलावा ना बहुत सारे होते हैं। .com के अलावा बहुत सारे डोमेन नेम यूज होते हैं। लाइक .com मतलब क्या, हम कंपनीज के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्री है, कंपनी है, जैसे जियो की कंपनी है। ओके, तो ऐसी कंपनीज के लिए, बालाजी कंपनी है, तो ऐसे जो कंपनीज होते हैं ना, उनको कौन सा वाला हम यूज करते हैं, वी यूज .com फॉर देम, वी यूज .com एब्रीवेशन, हम .com यूज करते हैं। वैसे ही अगर एजुकेशन सेक्टर के लिए हो तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज .edu। edu मतलब एजुकेशन, जैसे एजुकेशन सेक्टर की ये वेबसाइट है .edu। वैसे ही गवर्नमेंट के लिए होता है .gov। आफ्टर दैट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे फार्मर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है, अभी रिसेंटली आप सुन रहे हो, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, कोई यूनियन है, तो वो कौन सा अपनी साइट को लगाते हैं एट द एंड, इंस्टेड ऑफ .com दे यूज .org। वैसे ही बहुत सारे होते हैं, लाइक .net फॉर नेटवर्किंग साइट्स, उनके लिए .net होता है। देन कंट्रीज का भी अलग अलग होता है, जैसे इंडिया के लिए होता है .in। देन इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए होगा .au। अभी ये सारी चीजें क्या है, इसका मीनिंग क्या है ना, कि हम जो भी जैसे कि साइट्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे लगाते .edu मतलब www डॉट सेंट मोनिका इंटरनेशनल .edu। अभी मतलब क्या किया हमने, जस्ट .com की जगह क्या लगाया, edu का मीनिंग क्या है, दैट इट इज एन एजुकेशनल साइट है, मतलब ये कोई स्कूल या कॉलेज के रिलेटेड साइट है। ओके, जिसके जहाँ पे क्या किया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है। अगर इसी की जगह अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस, अगर जैसे आरोग्य सेतु ऐप है, ओके, तो आरोग्य सेतु ऐप का हम लेते हैं, लाइक आरोग्य .gov
gov.gov से क्या समझ में आता है, दिस वन इज द आरोग्य सेतु ऐप, जो कि आरोग्य सेतु लिंक जो कि क्या है, गवर्नमेंट की लिंक है। तो डोमेन नेम इन्हीं के बेस पे दिए जाते हैं, on this .com, .edu, .gov, .org, .net and many more are there. Okay, and next one is .in, .au for different countries, like .au is for Australia, .uk is for United Kingdom and many more. So guys, here we have completed our third point from the chapter, that is basic internet terms. Now let's move further on requirement for getting online. Oh, okay. So how to get yourself online, ऑनलाइन कैसे आना है, या ऑनलाइन कैसे ऑनलाइन कनेक्टिविटी के लिए क्या हमें लगता है, तो ऑनलाइन के लिए हमें क्या लगता है ना, फर्स्ट थिंग दैट वी रिक्वायर इज अ कंप्यूटर। अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप नहीं होगा तो आप इंटरनेट यूज कर पाओगे क्या, कर सकोगे क्या, नहीं कर सकोगे। तो अगर आपको ऑनलाइन आना है, मतलब इंटरनेट ऑन करना है, इंटरनेट के ऊपर काम करना है, तो मेन थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज अ कंप्यूटर। यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर इट इज गिवन इन योर बुक, बट इंस्टेड ऑफ अ कंप्यूटर यू कैन ऑल्सो हैव अ मोबाइल, you can have a laptop, you can have a tablet, okay, anything you can use for getting online. Next one is modem ना, ये आजकल यूज नहीं होता, मॉडेम यूज होता है बट इन अ डिफरेंट वे। पहले ना मॉडेम मतलब एक हार्डवेयर डिवाइस आता था जिससे के थ्रू हमें हमारे नेट को कनेक्टिविटी, हमें हमारे कंप्यूटर को कनेक्टिविटी देनी होती थी। तो मॉडेम पहले बड़े साइज के आते थे। ओके, आफ्टर दैट व्हाट हैपन ना, अभी हम हमारे मोबाइल में इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो आपने देखा है क्या कि मोबाइल को हमें कोई बाहर से जैसे पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं वैसे कोई डिवाइस कनेक्ट करना पड़ता है, नहीं। तो अभी क्या है ना, मॉडेम इंटरनल आते हैं। मॉडेम एक डिवाइस है जिसके थ्रू हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। आप लोगों के घर पे अगर लोकल सर्विस प्रोवाइडर का इंटरनेट होगा, बीएसएनएल वगैरह का, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे आपके पास एक मॉडेम है करके ऑलरेडी घर में, ट्रायंगल शेप में होता है, और उसे थोड़ा केबलिंग वगैरह की जाती है। ओके, सो मॉडेम मतलब क्या, विच इज यूज फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी which passes internet signal from one end to the another. So the modems are of two types, one is the external modem and another one is the internal modem. External modem which we have to connect externally, which it is a hardware device which can be connected externally to the computer in the same way as we connect hard disk pen drive to our computer. Then नेक्स्ट वन इज इंटरनल मॉडेम, जो कि आपके मोबाइल में ऑलरेडी एम्बेड किया गया है, ऑलरेडी डाला गया है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। आपको दिखाई नहीं देता है पर मोबाइल के अंदर होता ही होता है। देन नेक्स्ट वन इज टेलीफोन लाइन मतलब क्या, आपने देखा होगा टेलीफोन लाइन, अगर आपके घर पे लाइन होंगे तो लाइन को एक केबल होती है, उसको प्लास्टिक लगा होता है एट द एंड, जो कि आप टेलीफोन के अंदर कनेक्ट करते हो। तो वो टेलीफोन लाइन से भी क्या है, आपको इंटरनेट मिलता है, उससे आपको जस्ट क्या करना होता है, आपके कंप्यूटर पे कनेक्ट करना होता है और आपको इंटरनेट मिल जाता है। लाइकवाइज सेम जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल के टेलीफोन आपके पास घर पे टेलीफोन लाइंस होंगे तो बीएसएन लाइन जो होता है ना, उसी को टेलीफोन लाइन बोलते हैं। सो थ्रू दैट यू कैन गेट अ इंटरनेट कनेक्शन। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या, ऐसे कंपनीज जो हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी देती है। अब कौन सी कंपनीज है जो हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी देती है, लाइक देयर इज एयरटेल, यू नो Airtel, Idea and Vodafone both are one now. Then Jio is there, BSNL is there, और ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो कि क्या करते हैं, हम लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या, ऐसी कंपनी जो हम लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। द एग्जांपल्स आर एयरटेल, जियो, देन BSNL, Idea, Vodafone and many more are there. BSNL and many more are there. Okay, now next one is essential software for the internet. अभी आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है, पर आपके पास ब्राउजर ही नहीं है, आपके पास
आपके पास ब्राउज़र नहीं है, आपके पास यूट्यूब नहीं है, आपके मोबाइल में यूट्यूब नहीं है, ब्राउज़र नहीं है, इंटरनेट वाले ऐप्स नहीं है, तो क्या आप इंटरनेट चला पाओगे? नहीं। आपको क्या लगेगा? आपको सॉफ्टवेयर लगेंगे। आपको क्या लगेगा? आपको सॉफ्टवेयर लगेंगे। तो एसेंशियल सॉफ्टवेयर फॉर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ब्राउज़र, यूट्यूब, ईमेल, ईमेल का जो सॉफ्टवेयर होता है वो चाहिए, देन एप्स चाहिए, व्हाट्सअप, फेसबुक। अगर व्हाट्सअप, फेसबुक नहीं है आपके इस पे, क्रोम नहीं है, मतलब ब्राउजर नहीं है, यूट्यूब नहीं है, तो क्या आप इंटरनेट चला पाओगे? इंटरनेट का यूज कर सकोगे? नहीं। सो व्हाट आर द एसेंशियल सॉफ्टवेयर फॉर द इंटरनेट? यू हैव टू डाउनलोड इट ऑन योर डिवाइस. ओके, डिवाइस कैन बी एनीथिंग, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट और अ लैपटॉप. ओके, so guys, here I have explained you requirements of getting online. If you are having any doubt in this chapter up till now, you can call me and you can ask me. Notes of chapter number 5, those who were not having, for them I have forwarded the notes in group. You can write the notes from there. You have to write it, and it's final time I am sending these notes of chapter 5, so you have to complete it in your book. Okay, and notes of this chapter I will give you after completing teaching of this chapter. Okay, so thank you.